Okay, once again, Assalamu alaikum and good morning everyone. Hope you people are doing well. We are meeting after so long. कल हमारी सेशन था but सेशन सही से हो नहीं पाया because of the network issues from my side also. And I was using the data network also but I was not able to connect even. So कल सही से हो नहीं पाया. So कोई बात नहीं. That practical session, whatever we have done, जो भी हम लोगों ने किया discuss, that we can discuss in the next session also. Not a big deal. Okay. So meanwhile, we'll start with the session. That is the theory session. Okay. Let me connect my pen tablet. It can be needed at any moment of time. Okay. So the last session, let me take you through the revision first. So I think in the last session we have gone through the error detection and correction. I think last lecture में हम लोग ने किया था. So we have done the error detection and correction, and we came to know what is error actually, okay, and how it is getting generated in our data, okay, because error is something which is you can call it as a noise, which is being added into the data when you are transferring the data, or when your data is transferring from one node to another node, okay. एक जगह से दूसरी जगह आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो बीच में कहीं ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर बहुत सारी नॉइसेस होती है. दैट नॉइज इज गेटिंग एडेड इनटू योर डेटा, ओके, एंड देन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेक्टिफाई दैट एरर. इट मीन्स वी हैव टू डिटेक्ट द एरर. क्या हो रहा है? We have to detect the error and then we need to correct it also, okay. So we have various technology, or we can say a mechanism from which we can detect the error and we can correct the error also. Just a minute. I was searching for my glasses actually, so that I was blinking too much actually. ट्राई करता हूँ इससे कुछ थोड़ा सा रिजॉल्व होना चाहिए. ठीक है, चलो. Okay, so we're discussing about this error. So this is our responsibility to detect the error with the help of various mechanisms, okay, and we need to correct it also. If we have that mechanism, if our mechanism has a capability to correct the error also, then we need to correct the error, okay. So after that, we come to know the different types of error, okay, and the different types of errors are nothing but the single bit error and the burst error, okay. So these are the two types of error we have discussed. If there's only if there's a noise or there's a only, then we call it as a single bit error. And if there is an error on two or more bits, okay, two or more bits have been changed, then we can say this is the burst error. Then we have seen the example also, that is the single bit and the burst. What is redundancy? We call it as a central concept in detecting the error and correcting the errors, you know. Some extra bits are added at the center side, and those extra bits are removed at the receiver side, so that is called as the redundancy. And the bits which are added at the center side and removed at the receiver side are called as redundant bits, okay. Then detection versus correction, the common point है. Then coding में we came to know that there are two types of coding. One is the block coding and second is the convolution coding. We'll be talking about the block coding only. Convolution coding is not in our scope. So in block coding, we have um, seen a simple we can say mechanism from which we can see
the data word, the word, or we can say the data which we want to send to the receiver, that is called as the data word, okay, which is of k bit, okay। ये हम लोग ने पूरा डिस्कस किया है, बस हम थोड़ा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो डेटा हमारे पास में होता है, वी कॉल इट एज द k bits, okay, and then we put into the generator, okay, and then it generate the code word, and the code word is of n bits, okay। That code word is sent to the receiver, your receiver receive the code word of n bits, it will check the code word, if it is okay, then it will extract the data word from the code word and it will accept the data, otherwise the data will be discarded or rejected। So that's a main concept behind it। having distance देखा हम लोग ने। now come to the next topic, that is linear block code, okay। अब यहाँ से हमारा टॉपिक एक्चुअल में स्टार्ट होता है, ठीक है। so basically it's a subset of a block code only, that's a linear block code। in this you will find two types of code, one is a parity check code, एक आपको उसमें दिखेगा parity check code, and the second one you will find as a cyclic code, okay। तो cyclic code के अंदर I will let you know about the cyclic code also। so first we'll start with the linear block code, okay। so basically it's a subset of your block code। linear block code is a code in which the exclusive or module or two valid code word creates another valid code word। दो कोड वर्ड का XOR करने पर आपको एक तीसरा कोड वर्ड, वो भी वैलिड कोड वर्ड मिलेगा, दैट्स अ लीनियर ब्लॉक कोड। we have first one, that is parity check code, okay। ये मैं इसकी आप लोग से बात कर रहा था, ठीक है। so this is the one type of code, or we can say error detection mechanism, we call it as a error detection mechanism, that is a parity check code। it works very simple, okay। if I will show you the diagram, then from the diagram, from the table, you will easily come to know that what is the parity check code, okay। so we'll read it later, first we'll see the table, okay। now everyone concentrate over here, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर, everyone must focus over here, okay। what we are learning right now, that is parity check code, okay। I hope that everyone is concentrating over here, I'm making it a full screen now। so this is the table for a simple parity check code, okay। it's a combination of C 5,4 5,4 in the sense ये होता है, कभी भी ध्यान रखना 5,4 का मतलब ये होता है, मैं आपको इसके थ्रू बताता हूँ। C 5,4 का मतलब है कि ये आपका कोड वर्ड है और ये आपका डेटा वर्ड है, ठीक है। तो ये आपका है डेटा वर्ड, ओके। मतलब जो हमेशा जो आपका पैरिटी चेक कोड जो होता है ना, वो हमेशा n, k के फॉर्म में होता है, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। योर पैरिटी चेक कोड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ n, k, ठीक है। सो n इज योर कोड वर्ड, ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया, दिस इज योर कोड वर्ड। और आपको पता है कोड वर्ड को रिसीव, मतलब आपको डेटा वर्ड को जब आप लोग मतलब जनरेटर में डालते हैं, अगर आपको याद होगा डायग्राम, तो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि जब आप डेटा वर्ड को, दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके, ऑफ ब्लॉक कोडिंग, in which again I'm revising you, just focus over here। we have a data word, okay, whatever data here we have, for example 1011, this is my data word, okay, yeah, this is my data which I want to send, okay। तो ये डेटा जब मुझे सेंड करना है, तो आई कॉल इट एज अ डेटा वर्ड। इसकी लेंथ कितनी है, 4 बिट्स है, मतलब k इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 बिट हो गया, ठीक है। तो k बिट्स मतलब क्या हुआ, ये 4 बिट्स हुआ, ठीक है। सो 4 बिट्स ऑफ डेटा वर्ड, दैट इज 1011, आई विल राइट हियर 1011। तो ये 1011 को हम लोगों ने क्या किया, जनरेटर को दिए, ओके। नाउ व्हाट जनरेटर विल डू, जनरेटर विल डू समथिंग, ओके, विल डू सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन और विल डू समथिंग अप एंड डाउन वगैरह वगैरह, कुछ भी किया उसने, and after doing that it will generate a code word, okay। now that code word is of n bit, okay। तो हमारे केस में, हमारे parity check code में, we were talking about the parity check code, so parity check code में क्या हुआ, हमारा जो n था, मतलब हमारा code word था, code word हमारा 5 बिट का था, और जो डेटा वर्ड था वो 4 बिट का था। मतलब हम लोगों ने डेटा वर्ड में कितने बिट ऐड किए, एक एक्स्ट्रा 1 बिट ऐड किए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका कोड वर्ड हो गया। गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है तो रिप्लाई दो मुझे। ये हमारा डेटा वर्ड जो था वो 4 बिट का था, ठीक है, हमारा डेटा 4 बिट का था। 4 बिट के बाद में हम लोगों ने इसको जनरेटर को दिए, दिस इज एट द सेंटर साइड, ओके, एंड दिस इज द जो हमारा पूरा मॉड्यूल है, दैट मॉड्यूल इज नथिंग बट द एनकोडर पार्ट, ओके। एनकोडिंग हमेशा सेंटर साइड पे होती है, और इसकी जो डिकोडिंग होती है वो रिसीवर साइड पे होती है, ये आपका रिसीवर साइड है, ठीक है। तो हमारा जो
जो डेटा वर्ड था ये हमारा 4 बिट का था, फिर हम लोगों ने जनरेटर को दिए, जनरेटर ने रिटर्न किया हम लोग को 5 बिट, ठीक है, n इक्वल्स टू 5, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो हो सकता है कि n इक्वल्स टू 6 बिट भी हो सकता है कि जो रिडंडेंट बिट है, जो आपके रिडंडेंट बिट्स है दैट आर 2 बिट्स, ओके, तो 4 प्लस 2 बिकम 6, ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 रिडंडेंट बिट ऐड कर रहे हो, तो आपका जो कोड वर्ड की जो साइज हो जाएगी वो हो जाएगी 7, ओके, इट्स अप टू यू, ओके। So our data word is of k bit, and after giving it to the generator, we got the code word of n equals to 6, n equals to 5। यहाँ पर हम लोग वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार वापस से इसको कर लेता हूँ। भाई साहब, ओके, 1 0 कुछ ऐसा हम लोग को रिटर्न, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं जिस, ठीक है। तो ये आपका बन गया कोड वर्ड, ये बन गया आपका कोड वर्ड। नाउ दिस कोड वर्ड विल बी सेंड टू द रिसीवर नाउ, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू उसको हम लोग ने भेजे, तो अब ये कोड वर्ड आपका 1 0 1 1 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, चेकर इसको चेक करेगा। सो वी हैव अ मॉड्यूल कॉल्ड एज अ चेकर who is going to check the authenticity of this particular code, whether the code which has been sent by the sender is correct or not, कि या क्या वो यही कोड है जो कि सेंडर ने हम लोग को भेजा है, या इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, इसमें भी कुछ एरर है, ठीक है। तो चेकर इसको चेक करेगा, अगर चेकर को लगेगा कि हाँ चलो ये तो ओके है, तो क्या करेगा, इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, 1 0 1 1 0 इसमें क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, ये वाला डेटा जो है आपका डेटा वर्ड है, ये डेटा वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। इसको क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। काय के लिए इसको डिस्कार्ड कर रहा है, बिकॉज वी कॉल इट एज अ redundant bits, okay, because you always know that the redundant bits are always removed at the receiver side, they are added at the sender side and removed at the receiver side, okay, so this is the redundant bit, so it has been removed at the checker side, चेकर ने इसको निकाल दिया। अच्छा, अगर कभी डेटा को चलो ऐसा रिसीव होता 1 1 0 1 कुछ ऐसा अगर रिसीव होता, आपको रिसीव होता, तो आपका जो चेकर है वो फौरन इसको पहचान लेता कि ये डेटा वो नहीं है जो डेटा हमारे सेंटर ने भेजा। आप बोलेंगे कैसे, तो ये हमारा चेकर ही वैसा होता है। अब ये तो एक जनरल डायग्राम है, व्हेन विल कम टू द पैरिटी कोड देन विल आल्सो यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो अबाउट दैट, ठीक है। उसके उसके अंदर भी एरर है, उसके अंदर भी मतलब कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहता है, हर एक जो भी मैकेनिज्म है इसमें आपको कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज मिलेंगे। सो अब जाहिर बात है, नोबडी इज परफेक्ट, ओके, सो दे आर स्ट्राइविंग फॉर द गुड रिजल्ट, तो स्टिल उन्होंने वहां तक पहुंचे। तो ये फॉर एग्जांपल हमको डेटा मिला, तो आपको पता है कि हमारा एक्चुअल डेटा जो था, हमारा जो एक्चुअल डेटा था वो था 1011, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 10 का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, और जो 1 था वो 1 था और 0 हम लोग ने ऐड किए थे। सो these two bits have been changed, so these two bits have been changed and this type of error is called as the burst error, ठीक है। so this type of error can be called as a burst error। अब जब ये डेटा मिला उसको, मतलब ये कोड वर्ड जब मिला हमारे चेकर को, तो चेकर चेक करेगा, अरे भाई इसमें तो गड़बड़ है, हमारा डेटा तो है नहीं, तो क्या करेगा, उसको डिस्कार्ड करेगा। द होल डेटा विल बी डिस्कार्डेड बाय द चेकर, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक कोडिंग, where we have these terms like a data word. This data word is given to the generator module, and that generator module will generate the code word of n bits. This code word will be sent to the receiver. That code word, when reaches to the receiver side, then it will be given to the checker module. Then checker module will check for the errors, okay. If there is no error, if there is no noise, and if the data is okay, then your data word will be extracted from the code word. Your data word will be extracted, your data word will be extracted from the code word, and the redundant bits are removed from the code word at the receiver side, okay, and this data word will be forwarded to the receiver, okay। ये समझ में आ रहा है आप लोग को, अरे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कुछ बोलते नहीं, बोलो जल्दी से, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप लोग बोल भी रहे हैं तो मुझे कहाँ दिख रहा है, आई नीड टू चेक इट ओवर यू।
कुछ ही लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी सब लोग क्या करते हैं मुझे पता नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, सो वी वर स्टार्टिंग द पैरिटी चेक कोड। ओके, तो पैरिटी चेक कोड के अंदर हम लोग तो पैरिटी चेक कोड के अंदर हम लोगों ने कुछ ये टेबल देख रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल देखते हैं, देन विल रीड अबाउट द पैरिटी चेक कोड। ओके, so this is the simple parity check code where the combinations have been used. You can see this combination. कहाँ जा रहे हो भैया आगे? These are the different combinations. Suppose we are having the data word as 0000. Okay, suppose we are having the data word as 0000, then what should be the code word? Okay, the code word should be 0. Why so? Because the parity check code says that अच्छा चलो एक बार read कर लेते हम लोग। This is the most familiar error detecting code. Okay, this is the error detecting code. Okay, this is not the error correction code. So first of all, you need to keep in mind. You know, it's a very common Viva question. Can parity check code detect the error and correct it also? This is the question. थोड़ा सा exclamation mark में थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है कि एरर डिटेक्शन कोड है या एरर करेक्टिंग कोड है, ठीक है। बिकॉज जो एरर करेक्शन कोड होता है वो डिटेक्ट भी करता है और करेक्ट भी करता है, बट एरर डिटेक्शन कोड एरर डिटेक्ट करेगा लेकिन करेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। So basically this is the most familiar error detecting code, which can detect the error, which cannot correct the errors. Okay, so keep it in mind. It is the parity check code, and this code is linear block code, and in this code a k bit data word, as you always know कि जो हमारा data word होता है वो क्या होता है, k bit का होता है। Okay, is changed to an n bit code word where n equals to k+1, मतलब के n की जो साइज रहेगी। अच्छा, ये सबसे पहले तो आपको ये जान लो कि जो आपका है डेटा वर्ड। ओके, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज योर डेटा वर्ड विच इज ऑफ के बिट, देन क्या बोल रहे हैं, इन दिस कोड अ के बिट डेटा वर्ड इज चेंज टू एन एन बिट कोड वर्ड। चलो ये हो गया हमारा कन्वर्ट कोड वर्ड में। हमारा जो पैरिटी चेक कोड है वो क्या काम करेगा, डेटा वर्ड को कोड वर्ड में कन्वर्ट करेगा, जो कि कौन से बिट करेगा, एन बिट करेगा। ओके, ये के से एन कैसे हुआ, बिकॉज एन इक्वल्स टू k+1। ओके, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि के बिट में आप एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करोगे। फोकस भैया, you are going to add one extra bit into the existing data word. You are going to add one extra bit into the existing data word in order to make it as a code word. ठीक है, तो आप k बिट के अंदर एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करोगे, k+1 becomes n। ठीक है, so k+1 becomes n। ओके, एंड दिस एक्स्ट्रा बिट, अच्छा अभी जो आप आप जो एक्स्ट्रा बिट ऐड करोगे, इट कैन बी 1 और कैन बी 0, राइट। इट कैन बी 1, इट कैन बी 0। तो आपको 1 और 0 कैसे ऐड करना है इसमें आपको 1 और 0 कैसे ऐड करना है ये आपको डिसाइड करना है। सो दैट इज ये जो मतलब ये चीज डिसाइड करने के लिए आपके पास में है पैरिटी चेक कोड। तो पैरिटी हमेशा क्या बोलती है, द एक्स्ट्रा बिट कॉल्ड द पैरिटी बिट, द एक्स्ट्रा बिट विच वी आर एडिंग, दिस इज द पैरिटी बिट। ओके, द एक्स्ट्रा बिट विच वी आर एडिंग इज द पैरिटी बिट, is selected to make the total number of ones in the code word even। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। आपका जो डेटा वर्ड था वो था 1011। ओके, 1011। अब आपको इसमें क्या करना है, दिस इज योर डेटा वर्ड, इसमें आपको एक बिट ऐड करना है सो दैट आपके नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, इवन हो जाए। तो जब आप इसमें एक बिट ऐड करेंगे तो आपको कौन सा ऐड करना चाहिए, 1011 के आगे कौन सा बिट ऐड करना चाहिए, चलो मुझे बताओ फटाफट। In order to make number of ones even, in order to make number of ones even, कौन सा बिट यहाँ पर ऐड करूं, 0 या 1? 1 ऐड करेंगे। चलो आंसर आप लोग क्या आ रहे हैं, 1 ऐड करना है। अगर हम लोग यहाँ पर 1 ऐड करते हैं तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ वंस आपके क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। सो दिस इज योर पैरिटी चेक कोड। ये आपको चीज यहाँ पर दिखाया है, यू कैन सी ऑल 0 है, तो यहाँ पर आपको 0 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ वंस आपके ऑड हो जाएंगे। हमको क्या करना है, इवन करना है, तो 0 हैज बीन एडेड ओवर हियर। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, 0101, इसमें नंबर ऑफ वंस आपके ऑलरेडी इवन है, तो क्या कौन सा बिट ऐड किए, 0 ऐड किए। वैसे ही आपका 1011 जो हमने एग्जांपल लिए थे, तो 1011 के अंदर आपको एक तो 1 ऐड करना पड़ा टू मेक। अच्छा, ये आपका है 1111, ठीक है, ऑल वंस, तो ये इसके अंदर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, कौन सा बिट ऐड करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज द केस।
इसका बहुत सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल पैरिटी चेक कोड ऑफ द कॉम्बिनेशन C5,4। ओके, तो हमेशा ये जो भी रहेगा आपका डेटा वर्ड पे डिपेंड है। अगर आपका डेटा वर्ड है k बिट का, if your data bit if your data word is of k bit, then your code word that is n will be equal to k plus 1, ठीक है। Always we are going to add one parity bit, okay, we are not going to add two parity bit or three parity bit, we are going to add only one parity bit over here, okay। तो एक पैरिटी बिट ऐड करने से क्या होगा आपके नंबर ऑफ वंस क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे, एंड वी हैव टू मेक नंबर ऑफ वंस इवन इन ऑर्डर टू जनरेट योर कोड वर्ड, ठीक है। तो ये आपका रहा डेटा वर्ड दैट इज डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ के, एंड योर कोड वर्ड इज इंडिकेटेड इन द n bit, okay, your code word is of n bit, which is nothing but a data word plus 1 bit extra, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, ठीक है। उसी का एक्सप्लेनेशन, जो मैंने एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ वही सब है यहाँ पर, तो इसको कोई रीड करने की जरूरत नहीं है। ये भी वही है, ठीक है। नाउ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको पैरिटी चेक का आता है, पैरिटी चेक कोड का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देन यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, देखो नो ऑलमोस्ट इफ यू कैन सी, देन हर कहीं पर हम लोग ने कुछ ना कुछ डायग्राम यूज किया है, ठीक है। कैसे डायग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ब्लॉक कोडिंग का डायग्राम है, दिस इज वेरी सिंपल एंड वी कॉल इट एज अ वेरी जनरल डायग्राम, ओके, वेरी जनरल डायग्राम, ओके। और फिर और भी डायग्राम है, नहीं आगे आपको डायग्राम आएंगे, देखो जैसे ये आपका ब्लॉक कोडिंग का एकदम जनरल डायग्राम है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम फॉर पैरिटी चेक कोड, ओके। वैसे हमारा ये वाला डायग्राम रहेगा सीआरसी के लिए, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी, which comes under the cyclic code, ओके। तो इसके लिए भी एक डायग्राम है। देन उसके बाद में हमारे पास में एक और डायग्राम है इसी तरह का, जिसको हम लोग बोलते हैं चेकसम, व्हाट इज चेकसम एंड हाउ इट इज जनरेटेड, तो उसका एक डायग्राम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ऐसे टाइप के डायग्राम 3-4 डायग्राम है, ठीक है। तो जो भी रिक्वायर्ड हो उस टाइम पे हम लोग उसको चिपका सकते हैं। सो दिस इज द डायग्राम फॉर पैरिटी चेक कोड वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। तो पैरिटी चेक कोड का हम लोग डायरेक्टली डायग्राम देखते हैं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग को इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज एट द सेंटर साइड एंड दिस इज एट द रिसीवर साइड। कहाँ पर है मेरा पेन, ये है। सो दिस इज एट द सेंटर साइड एंड दिस इज एट द रिसीवर साइड। द डेटा वर्ड जो मेरे पास में है, दैट I call it as the A0, then A1, then A2, A3, जैसे वही नाम हम लोग ने यहाँ पे दिए, A0, A1, A2, A3, always start from this one, ठीक है। तो A0, A1, A2, A3, it is your data word, okay। then क्या किया हम लोगों ने, A0, A1, A2, A3, ये चारों को हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। साथ में इन चारों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला करती है कि व्हाट शुड बी योर जनरेटर, ओके। मतलब दिस ऑल द बिट्स विल बी गिवन टू द जनरेटर, एंड बेस्ड ऑन दीज फोर बिट्स योर जनरेटर इज गोइंग टू डिसाइड which bit is to be added, which bit is to be added into the code word। एक सेकंड कर लें। और कुछ नहीं, चलो, ओके। So all these four bits will be given to the generator, and then generator will be deciding that which bit is to be added into this particular position, because you know कि अगर आपका data word is of 4 bit है, तो 4 plus 1 bit will be added into the data word and it becomes the code word of 5 bit, okay। So ये हमारा 5 bit का code word। जो पैरिटी चेक कोड हम लोग ने अभी पढ़ा ना, उसी को डायग्राम फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग, वो यहाँ पर बताना है, ठीक है।
तो ये आपका 4+1 हैज बीन एडेड 1, तो ये सॉरी 4+1 बिकम्स 1, आपका हो जाएगा 5 बिट का, ठीक है। मैं मेरा कर्सर देखता हूँ, कर्सर दिखता नहीं है एक्चुअली, 4+1 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका A0 A1 A2 A3 will be as it is, as you can see A0 A1 A2 A3 as it is, and based on these 4 bits your parity bit will be added, that is R0. Why we have named it as a R? Because that is the redundant bit, okay, and the redundant bits are always added at the sender side and removed at the receiver side, so these are called as redundant bits, okay। तो R0 मैंने इसका नाम R0 दिया हम लोगों ने, और R0 के बाद में कहाँ चला, फिर भाग गया मेरा कर्सर, हाँ यहाँ पर। तो R0 को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो ये हमारा बन गया पूरा कोडवर्ड बन गया 5 बिट का, ठीक है। तो ये 5 बिट्स का हमारा n = 5 जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो n बिट यानी 5 बिट्स का हम लोग का कोडवर्ड है, दैट कोडवर्ड हैज बीन सेंड टू द रिसीवर, ठीक है। ये हमारा रिसीवर हम लोगों ने दे दिया, ये कोडवर्ड हमारा यहाँ पर आ गया। अब कोडवर्ड आने के बाद में जो हमारा डिसीजन लॉजिक है, वी हैव अ मॉड्यूल कॉल्ड एज अ चेकर आल्सो, वी हैव अ मॉड्यूल कॉल्ड एज अ डिसीजन लॉजिक आल्सो, ओके। तो दिस विल बी चेक, ओके, ये हम लोग का चेक होगा, और चेकर इसको चेक करेगा। चेक करने के बाद में इसका एक्चुअली और भी एक है, इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे वेदर द कोड वर्ड जो कि हम लोग ने रिसीव किया है, तो ये कोड वर्ड हमारा सही है कि नहीं, इसके अंदर हम लोग को चेक करेंगे। तो ये बेसिकली चेकर हमारा वही काम करेगा, और एक्सेप्शन और रिजेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द डिसीजन लॉजिक, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमारा डिसीजन लॉजिक होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई बिट चेंज होता है, अगर हमारा कोई बिट चेंज होता है तो हम लोग को पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आपका आपका था 1011 था, ठीक है। आपने इसमें एक तो 1 ऐड किए थे इन ऑर्डर टू मेक द नंबर ऑफ वंस इवन करने के लिए आपने इसमें 1 ऐड किए थे। फिर ये क्या हो गया, रास्ते में क्या हो गया, 1 0, ये 1 का हो गया 0 हो गया, फिर ये 1 1, ठीक है। अब ये जब कोडवर्ड यहाँ पर आया तो मेरे चेकर और लॉजिक, मेरे जो मेरा डिसीजन लॉजिक है वो चेक करेंगे, अरे हम लोग ने मतलब सेंडर ने तो इसको नंबर ऑफ वंस इवन करके भेजा होगा, सेंडर ने उसको नंबर ऑफ वंस इवन करके भेजा था, लेकिन यहाँ पर आके नंबर ऑफ वंस वापस ऑड कैसे हो गया, 1 2 3, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। सो दैट डेटा विल बी डिस्कार्डेड। समवन कैन आस्क द क्वेश्चन, आप में से कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन समवन कैन आस्क द क्वेश्चन कि सर अगर कभी ऐसा हुआ कि दिस 1011 का जो डेटा है हमारा, ये ऐसा हुआ 01111, ओके, ऐसा कुछ हो गया, तो हालांकि चेंज हुए ये और ये 2 बिट हमारे चेंज हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी नंबर ऑफ वंस तो आपके इवन है ही, ठीक है। सो दैट इज द वन डिसएडवांटेज वी कैन से ऑफ 1, जो कि हम लोग को प्रॉपर्ली इसको लोकेट नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर एरर है तो डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे आप उसको यहाँ पर, इसीलिए कुछ एक छोटा सा मैकेनिज्म रखते हैं उन लोग, मतलब ये चेक करने के लिए कि आपका डेटा चेंज हुआ है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ वंस इवन ही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन और उसको हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा मैकेनिज्म रखते हैं, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर सिंड्रोम वगैरह रखते हैं वो चीज़ चेक करने के लिए। और फिर आगे लॉजिक, जो हमारा लॉजिक है वो लॉजिक चेक करेंगे, और उसके बेस पर मतलब डिस्कार्ड या एक्सेप्टेंस करेंगे। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हूँ, ये कहाँ चले गया मेरा कर्सर, हाँ। The syndrome is 0 when the number of ones in the received code word is even, okay, otherwise it is 1। तो उसके लॉजिक के बेस के ऊपर वो करते हैं। तो बहरहाल पैरिटी कोड चेक आपका एक ऐसा कोडिंग स्कीम है जिसके अंदर वी ऐड 1 एक्स्ट्रा बिट, दैट इज द पैरिटी बिट इनटू द डेटा वर्ड, ओके, and the code word is generated, okay, and that code word is sent to the receiver. When receiver receive that code word, it has to remove that redundant bit, okay, that is R0 जो हम लोगों ने वहाँ पे ऐड किया था, the redundant bit, the one or single bit we can say, so that is to be removed at the receiver side, okay। if we remove that redundant bit, then we can get our actual data word, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है आपका, ओके। तो ओके, थोड़ा हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट, बिकॉज ये कल हमारा पूरा टाइम खा जाएगा, ठीक है। सो टुमारो वी हैव लेक्चर ऑल्सो, कब है लेक्चर, मॉर्निंग में लेक्चर है थर्सडे को ना, हाँ। सो कल का लेक्चर मॉर्निंग का मिस मत करना, बिकॉज
We are going to start the cyclic code, and in this cyclic code we are going to start the cyclic redundancy check, that is CRC. Okay, और ये CRC हम लोग पढ़ेंगे आज और कल, बिकॉज ये एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता, तो विल बी लर्निंग अबाउट दिस CRC. ओके, ये कैसे काम करता है, यहाँ पर यू कैन सी एक्सप्लेनेशन मैंने किया हूँ. दिस इज द डिवीजन इन द CRC. एनकोडर साइड पे क्या होता है, इन ऑर्डर टू जनरेट द कोड वर्ड ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है. एंड एट द डिकोडर साइड ऑल्सो we will see both the cases where the data is corrupted and where the data is not corrupted. और ये उसका है एक्चुअल में टेबल. ठीक है, तो ये हम लोग सब पढ़ने स्पेशल लीनियर ब्लॉक कोड विच कम्स अंडर दी ब्लॉक कोडिंग ओनली. ठीक है, सो ब्लॉक कोडिंग का सब पार्ट लीनियर ब्लॉक कोड, और लीनियर ब्लॉक कोडिंग का इसमें से एक कोड जो है वो है साइक्लिक कोड. ठीक है, it has one extra property. And what is the property? If your code word is cyclically shifted, that is rotated, the result is another code word. So for example, आपके पास में अगर कुछ डेटा है जैसे कि 101101, फॉर एग्जांपल ये डेटा है, अगर इसको आप शिफ्ट करेंगे साइक्लिकली लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट शिफ्ट में आपको डेटा क्या मिल गया आपको, अरे बोलो डेटा क्या मिला. लेफ्ट शिफ्ट मतलब लेफ्ट बिट को आप उठा के यहाँ पर रख दोगे. ठीक है, तो 1 को उठा के यहाँ पे रख दिए तो आपको क्या मिल गया 01101, और ये 1 को यहाँ शिफ्ट किए तो आ गया 1. ठीक है, सो इट बिकम्स द अनदर कोड वर्ड. ठीक है, सो one code word when it is cyclically shifted to the left shift है वो है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CRC. ओके, तो CRC इज अ वेरी पावरफुल कोड विच इज केप्ट विद द डेटा. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ. यू आर एट वन लोकेशन एंड यू आर सेंडिंग वन डेटा. ठीक है, दैट इज 1011, आप डेटा सेंड कर रहे हो. ठीक है, तो ये डेटा आप जब सेंड करोगे वाया सम ट्रांसमिशन मीडिया. ठीक है, and your friend will receive that particular message. Okay, with this मैं यहाँ पर लिखता हूँ. ठीक है, 1011. ओके, जो भी है, तो क्या होता है आपके डेटा के साथ में ना, इस जब CRC हम लोग यूज करते हैं तो along with the data the CRC of that data is also sent. ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ क्या है CRC of that data. ये डेटा को मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एट द सेंटर साइड में डेटा को उठाऊंगा, इसको मैं कुछ तो कैलकुलेशन करूंगा उसके ऊपर, कुछ तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन जितना भी मुझे करना है, जो भी इसका एक प्रोसीजर स्टैंडर्ड वो मैं करूंगा. और वो करने के बाद में उसकी मुझे कुछ एक वैल्यू मिली, फॉर एग्जांपल वैल्यू मिली मुझे इसकी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक्स वाई, मुझे इसकी वैल्यू मिल गई एक्स वाई. ठीक है, तो CRC की फील्ड में मैं एक्स वाई डाल दूंगा. ठीक है, एक्स वाई डाल के फिर इस पूरे कंप्लीट डेटा को मैं सेंड करूंगा. ठीक है, अब डेटा मेरा ये पैकेट सेंड हो रहा है, मेरे फ्रेंड को जा रहा है. मेरा फ्रेंड जब ये इसको रिसीव करेगा, CRC इक्वल्स टू एक्स वाई यहाँ पर मेरा फॉर एग्जांपल, तो रिसीव करेगा तो ये क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा जो मैंने किया था. इस 1011 को क्या करूंगा मैं, इस 1011 को अगेन मैंने क्या किया था, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन वॉट जो परफॉर्म करना है, एक सेट ऑफ प्रोसीजर मैं परफॉर्म करूंगा और मुझे इससे कुछ तो वैल्यू मिलेगी. ठीक है, मुझे इससे वैल्यू मेरा मिली बराबर एक्स वाई मिली. ओके, तो दैट द CRC which the sender has sent, the CRC of the sender and the CRC which has been calculated by the receiver, both will be compared. Okay, both will be checked. Okay, if both are okay then we will understand कि हाँ भाई our data is okay. Okay, समझ में आ रहा है आप लोग को. CRC देखो, मैं आपको पहले CRC का एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि CRC कहाँ यूज होता है, and then we will start learning the CRC, then you will understand the importance of this code. ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बताओ. हाँ सर. ओके, so why this particular CRC is sent along with the data, because we need to check whether the data is correct or not. We have to make sure that the data what we are sending to the receiver is correct and it does not contain any kind of error. Okay, so in order to check it, for example जैसे मैंने आपको यहाँ बताया 1011, इसका मैंने कुछ तो उसको उठा पटक आड़ा टेढ़ा जो भी करना था करके मुझे इसकी वैल्यू मिली एक्स वाई. ठीक है, यहाँ इसको मैंने भेजा, फिर इसने क्या करेगा, ये भी अपना वही सेम प्रोसीजर फॉलो करके उठा पटक आड़ा टेढ़ा करके जो भी इसको मिलेगा
तो ये उसको वैल्यू मिलेगी, दैट इज सीआरसी वैल्यू। वो अपना सीआरसी वैल्यू और सेंडर ने जो सीआरसी वैल्यू किया सेंड, वो दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। इफ बोथ आर ओके, ओके बोथ आर सेम, then we can come on this particular point that कि your data is not corrupted, okay। अच्छा, मैं जो भी मैंने सीआरसी वैल्यू निकालने के बाद में, फॉर एग्जांपल मुझे मिल गई वैल्यू एक्स एक्स मिल गई, ठीक है, एक्स एक्स वैल्यू मिली, दैट इज सीआरसी वैल्यू व्हिच इज नॉट इक्वल टू द सीआरसी वैल्यू व्हिच हैज बीन सेंड बाय द सेंडर, ओके। तो अगर कभी वैल्यू दोनों इसमें नहीं मिलेगी तो दैट पैकेट विल बी डिस्कार्डेड, दैट पैकेट विल बी डिस्कार्डेड, ओके। ये पैकेट आपका रिसीवर रिसीव नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है कि जो डेटा है ये करप्टेड डेटा है, इसके अंदर कुछ तो नॉइज एडेड है, ओके। नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरसी। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझे आप लोग, कल इसका एप्लीकेशन समझे अभी, अगर ये समझे होंगे तो आप, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली सीआरसी, वेयर द सीआरसी इज यूज्ड, ओके, along with the data, it is sent to the receiver in order to check whether the data is corrupted or not corrupted, ठीक है। तो आगे ना, ये भी आपका एरर डिटेक्शन और करेक्शन में आ जाता है, ठीक है। सो we can create cyclic codes to correct the errors also. In this section we simply discuss the subset of cyclic codes called as the CRC. So we have a code that is CRC. Now coming to this point is quite difficult because ये आपका टाइम बहुत ले लेगा, इसको हम लोग को टाइम चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे अभी, जस्ट 10:46 राइट नाउ, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे। सीआरसी हम लोग कल ये दोनों डायग्राम समझेंगे, क्या एक्चुअल डायग्राम में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज द डेटा वर्ड एंड द कोड वर्ड वी आर रिसीविंग, कोड वर्ड वी आर रिसीविंग इज n इक्वल्स टू k+3। यहाँ पर ऐसा हुआ, लेकिन k+3 नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ और भी है, ठीक है, तो वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा बिट ऐड हुए हैं आपके डेटा वर्ड के साथ में, तो डेटा वर्ड प्लस रिडंडेंट बिट्स बिकम योर कोड वर्ड, ठीक है। So that code word is sent via the transmission medium and that is sent to the checker, okay। और checker उसमें से फिर क्या करेगा, चेक करेगा, निकालेगा, और लॉजिक फिर आपका डिसीजन लॉजिक और एक्सेप्शन रिजेक्शन एंड सो ऑन, आपका जो भी है उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कल करेंगे, डायग्राम सिंपल है। इन दिस डायग्राम विल बी लर्निंग अबाउट दिस पर्टिकुलर द डिवीजन पार्ट विच इज वेरी वेरी सिंपल। एक बार आपको बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ओके। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझा हो, ठीक है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। अब तो समझ